Good evening, all of you. I, Rotarian Shankar Bhagat, Club President for the Rotary year 2022-23 for Rotary Club of Thane, Ghodbandar Road. On behalf of our club, I welcome you all. All are requested to put your name and city in the chat box. As you all know, we are conducting this webinar on writing of will. The speaker for today's webinar is Advocate Girish Rao. He is also fellow Rotarian from our club and he is membership director for our club. Kindly, all are requested to keep yourself mute. Admin, can you mute everybody, please? The importance of will is ignored by many. We therefore thought that we should start our legal education series. In this series, first subject we have selected is writing of will. It is very important to be written during our lifetime. If not written, it creates multiple problems, which I am sure Girish will be covering in his talk. Girish is advocate and solicitor, having more than 27 years of experience. His area of practice is real estate, property law, RERA, writ petition, etc. When it comes to property succession, will is important part of it. So today he is going to speak on will. Without taking your more time, I am handing over it to Girish to start this exciting webinar. Girish, you can start. Hi, good evening, everybody. I hope you are able to listen me properly. Yes, sir. Just put one in your chat, and I'm requesting everyone to keep yourself muted because somehow I'm not able to from here mute everyone. I don't know because this Zoom I'm using through some LMS system. Okay, just tell me how many of you know Vijay Pat Singhania? You might have heard his name. Those who know, just put in the chat box number 1. And those who don't know, put number 2. Right. I couldn't say Vikas, Avinash.
Okay. So most of you know, and most of you know what happened with him. Right? First of all, let me thank the Rotary Club of Ghodbandar Thane for allowing me to speak on their topic of will. Today, I'm going to speak on topic. Our today's topic is writing of will. Intentionally, the topic is kept as writing of will. I didn't use the word drafting of will. That is the reason, because the moment we say drafting of will, it goes automatically, there is something technical things. That is the reason I kept it drafting of will. End of the day, I'm sure everyone will be able to draft your own will without any external help. Some of the advocates were angry with me that I used stop going to the lawyer also. I received some comment also, but that's okay. That was a part of my wisdom. So we are going to cover, one is what is will, how to draft a will, what is a probate, and what is letter of administration, everything we are going to cover. And also I'm going to give a format of drafting a will, and thereafter I'm also going to reply all the queries which you have put on this thing. So I'm once again, thank you all of you. You could have spent this time doing something else, but you chose to come over here. So I'm thankful for you. My name is Girish Rao. I'm having more than 25 years of experience as a lawyer, and both litigation and non-litigation. So I thought I will speak today on the subject of will. So without wasting much time, let's start with the topic. I'm once again requesting everyone to keep yourself muted so that everyone will understand what I'm speaking and it will not create any disturbance. So now Girish sir, yes. 1 minute. Tell your admin team to put the Zoom ID and password in the group. No. It is through this thing. Okay, it is link through LMS system, so I can't. That's the whole problem. Okay. Yeah. So let's start now with the topic. Everyone is able to see my screen? Just put in a chat box. It is visible. Put in a chat box 1 if you can visible. If you have difficulty, put it no. Okay. So let's start. So in this, we are going to cover topic what is will, what is difference between will and nomination, advantage of making will, how to write a will, and registration and stamp duty on the will. These are the brief topics which we are going to cover. And I'm sure after this topic, many of the queries which you had put in the WhatsApp chat will be resolved. And I'm going to take those queries also one by one if you feel it has not been covered. So let's begin now. Now, first question which comes into mind, what is a will? Will is basically a document written by a person to whom his property should be given after his death. That is basically what a will is. The section 2H of the Indian Succession Act defines will means legal declaration of intention of a testator with respect to his property which he desires to be carried into effect. I am not going too much technicalities. I am not going to tell relevant section. I am not going to quote relevant section also. This is only first time which I am referring to relevant section, because my whole objective is you should be able to write the will your own end of this session. So just for this thing, I am just explain what is a will. So it's basically a document which you write how your property should be given or transferred after your death. That is basically is a will. Everyone understood it?
kindly those, if you understood, put yes, yes in the chat, or you can just write yes in the chat box so that I understand you are understood. Okay. Okay. Thank. Good. 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 Gavresh, Ravi Prakash, Pradeep, Jai, Pradnya. Okay. Good. Good. So I will proceed further. What are the different kinds of will? There are basically two will, which is unprivileged will and privileged will. And then you can also add to this is joint will or mutual will also. But end of the day, they fall into these two categories: unprivileged will or and privileged will. Privileged will is in respect of military man or those kind of people who are actually on the warfare. We are not going to discuss that here, because at that time their circumstances are different and the way they can execute the will is different. So which we are not going to touch those topics right now. We are going to touch the topic. We are going to cover the topic of unprivileged will, which is a normal will, which we talk in a normal circumstances. So today I'm going to speak on unprivileged will. So let's begin. Let's proceed further. So will, you have understood that is a one type of will. Then often we ask what is the difference between, you understood the will which I explained. Now then question comes, what is a nomination? Why should one make a nomination? And then what happens to them? Basically, nomination is means you are appointing a person by filing a form to represent you after your death. Nomination as such, I have not come across anywhere it is defined. But nomination you will find in Society Act, Companies Act, in Banking Regulation Act, where you get a form which you have to fill and then give it so that he becomes a nominee of a person. So now the question comes, what happens when there is a nomination filed, whether you should still go for a will. Understand this. Nominee is a trustee of a deceased. He doesn't become legal heir. When a person has filled a legal nomination form, that means he has appointed some person to represent him after his death. Let's take an example of Cooperative Society Act. You are aware, right, that everyone has to fill, means society insists that you have to fill a nomination form, right? So what happens when you do that? You fill a form and then give it to the society. Then after the member expires, his name is recorded in his society. Now there are certain changes which has taken place after amendment to the Cooperative Society Act in 2019. But I'm just talking in general the process which has to be followed. The process which has to be followed, a person who is nominated will have to be representative of the deceased. So he is a nominee, but he is not the legal heir. So take an example. What happens? Suppose a person has filled a nomination and he has also made a will. Under the nomination,
he appoints, he nominates, not appoint, I will say, he nominates his younger son as his nominee. And he makes a will. And under the will, he bequeaths, means I don't want to use that technical word bequeath. He gives that property to his elder son. So now, who is entitled to the flat? Can you put in the chat box who is entitled to flat? Under the will, he has given the property to the elder son, and in the nomination, he has nominated younger son. So who will be entitled to the flat? Put, if according to you, if it's younger, put younger. If it's elder, then just put elder in the chat box. Yes, Jay, Gauresh, good. Yes, Madhura, Chandrakant, Sandeep. Yes, yes. All of you seems to have got it right. So nominee, yes, Ashok, Naneshwar. Yes, good. So all of you got it right. That nomination is basically just a representative person who will be representing the DC. So now question comes, who can make a will? Any person who is of sound mind and is major, is a basic and person basically capable of making a contract can make a will. Basically, it's a contract. Basically, he is giving someone that after his death, property has to go through. So basically, concept of contract comes here. So he has to be of sound mind and he has to be a major. Then, because this act of earlier, so even married woman can make a will is the part, because now it is accepted, but then it was not so when this act was enacted. Act is of 1925. So married woman can also make her will. Deaf, dumb, blind can make a will if they know what they are doing. So basic criteria is they should make a will of what they are aware of. They should know that what they are doing, that is, even they can do the will. Even insane man, during a period when he is of sound mind, that means a man may be insane, but he may not be insane all along. So he could be at some period of time, he could be of also sound mind. If he makes a will at that time, then he can also make a will. But person cannot make a will if he is in such a state of mind that he is not aware what he is doing. Example, maybe he is a drunk at that point of time, or maybe he is suffering from some illness, or maybe of old age. Well, let me tell you, this is the criteria, this is the basic objection always is taken for the will. That the person was not knowing what he is doing, so will is not proper, so the will is void. That is the basic criteria, which is, you will find 99% that is the objection which comes when it comes to probate, when the will is contested. Oh, sorry. I had told that I will be speaking in English and Hindi also. Is it okay for everyone that I can continue speaking only in English, or you want me to speak in Hindi also? If you want me to speak in Hindi also, just put 2 also. अगर आपको चाहिए कि मैं हिंदी में भी बात करूं तो चैट बॉक्स में 2 डालो, सो दैट मुझे पता चलेगा कि मैं हिंदी में भी बात करूं, क्योंकि मैंने कहा था कि नॉर्मली इंग्लिश में आप हो जाता है, तो इसके लिए ओके ओके गौरेश, दोनों लैंग्वेज में मैं बात करूंगा. ओके 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 गुड. आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि मैंने बोला था हिंदी में भी बात करें. यस प्रतिभा, यस प्रदीप.
तो विल कोई भी आदमी जो मेजर है ना, जिसकी 18 साल के ऊपर से ज्यादा उम्र हो और जो दिमागी हालत जिसकी ठीक हो, वो विल बना सकता है। और जो अंधा, जिसको दिखता नहीं है और जिसको सुनाई भी नहीं देता, वो लोग भी विल बना सकते हैं। और विल जो नहीं बना सकते हैं, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो, शायद उसने शराब पी हो, उस स्थिति में अगर वो कर रहा हो, या जिसका ओल्ड एज के वजह से, जिसकी उम्र बहुत बढ़ गई है, उसकी वजह से नहीं समझता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो लोग विल नहीं बना सकते। वो विल जब अगर बना भी दे, वो वॉइड है ना, उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। कोर्ट में क्या होता है नॉर्मली, बहुत बार यही की वजह से झगड़ा होता है, यही कोई भी विल दे ट्राई टू, ये विल बराबर नहीं है करने के लिए वो कारण लेते हैं कि उनकी उम्र बहुत बढ़ गई थी, दैट इज द रीजन ही वाज नॉट एबल, ही वाज नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग द विल, बिकॉज ही वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा। तो ये लोग हैं जो विल बना सकते हैं। तो बेसिकली सब लोग विल बना सकते हैं। तो विल क्यों बनाना चाहिए? व्हाई शुड ए पर्सन मेक ए विल? One of the reason is that you may have a give a clear intention, आपकी प्रॉपर्टी किसको जाना चाहिए, who your property should go after your death। नहीं तो क्या होता है, अननेसेसरीली झगड़ा चालू होता है। मैंने शुरुआत में आपको सबको पूछा था, आस्क यू, डू यू नो विजयपत सिंघानिया, राइट? आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने विल नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने जीते जी ड्यूरिंग मीन्स लाइफ टाइम ही उन्होंने सब अपने बच्चे लड़के को दे दिया, गौतम सिंघानिया को। विजयपत सिंघानिया मालूम है आपको सबको कि वो रेमंड के मालिक थे, लेकिन उन्होंने उनके जीते जी सब अपने बच्चे को, लड़के को दे दिया, वो गिफ्ट करके। तो बच्चे ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनका सब झगड़ा चालू हो गया। ठीक, तो वर्चुअली वो स्ट्रीट पे, रास्ते पे आ गए, वर्चुअली ऑन द स्ट्रीट। तो इसके लिए मैं सबको कहता हूँ, कोई भी मेरे पास आते हैं कि नहीं मैं लड़के को आप भी देना चाहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, अच्छी बात है, एवरीवन लव्स हिज चाइल्ड, इज अ गुड थिंग। बट कोई भी, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ड्यूरिंग लाइफ टाइम उसके ट्रांसफर करके मत दीजिए। कि आप अगर रास्ते पे आए, जो देना है दीजिए, ऐसा नहीं कि सब न दिए, बट अपने आप को सेफ रखिए, नहीं तो आप भी रास्ते पे आ सकते हैं। सिमिलरली उसका एक कॉन्ट्ररी देखे, अगर आप हल्दीराम का डिस्प्यूट, मेरे ख्याल से उनका नाम महेश अग्रवाल कुछ है, मैं भूल गया, तो वहां पे क्या किया उन्होंने, विल बनाया ही नहीं। जैसा ही उनका डेथ हो गया, दे स्टार्टेड डिस्प्यूटिंग, हिज फैमिली डिस्प्यूट स्टार्टेड। तो इसके लिए एवरीवन should make a will, so that you are clear how your property is going to who is going to get what property। तो उसके लिए विल बनाना जरूरी है। अगर विल नहीं बनाया तो क्या होता है, वो भी अपने को जानना चाहिए ना, कि अगर विल नहीं बनाया तो क्या होता है। अगर आप विल नहीं बनाते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, तो आपके सक्सेशन एक्ट, योर प्रॉपर्टी विल डिवॉल्व एज पर द सक्सेशन एक्ट। यानी सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट आर बेसिकली टू एक्ट्स विच आर एप्लीकेबल। या आपका जो अदर मोमेडियन, इसमें देयर इज नो कोडिफाइड एक्ट्स एज सच, आई एम नॉट अवेयर ऑफ, तो वो एज पर सक्सेशन एक्ट चला जाएगा। बहुत बार देयर विल बी डिस्प्यूट the who is the legal heir। बहुत से जगह you will find that he is saying that he was adopted son, he is a stepson, or someone will say that she is his wife,
they were married, ऐसे बहुत से उलझने हो जाती है. So lot of multiple disputes start, multiple things start. So therefore if you make a will, आपका फैमिली में जो झगड़ा वो नहीं रहेगा, वो झगड़ा नहीं कर पाएगी. झगड़ा सिर्फ एक ही इश्यू पे कर पाएंगे कि ये विल बराबर है क्या नहीं. दैट इज द ओनली थिंग दे कैन फाइट, कि ये विल बराबर है या नहीं है. तो इसके लिए विल जरूरी है बनाना. आप लोग को समझा अभी तक मैंने क्या कहा? एवरीवन गॉट व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली? इफ यू आर अंडरस्टूड पुट यस. अगर नहीं समझा तो यू कैन पुट इन द चैट व्हाट यू आर नॉट फॉलो. मैंने आपको कुछ नहीं समझा तो चैट में डालिए कि आपको क्या नहीं समझा, तो आई विल रिपीट. पुट इन अ चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड यस, वाई यस यस. शर्मिला, थैंक्स. केसी गर्ग, दिवाकर, संदीप. Yes, I have to keep a watch on the time also. Okay. तो अभी मेन टॉपिक अपना आता है हाउ टू राइट ए विल. विल बनाने के लिए अभी आप ध्यान से सुनिए. विल बनाने के लिए दैट इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट हाउ टू राइट ए विल. विल जब बनाते हो बेसिकली उसमें 4 people, 4 representative, I can 4 people are there in that when you are making a will. One, आप जो will बना रहे हो. दूसरा एग्जीक्यूटर, मैं सब समझाऊंगा आपको. तीसरा आता है जिसको आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, तीसरा. और चौथा आता है जो विटनेस रहने वाले. तो बेसिकली ये 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं जब विल बनाते हैं. व्हेन यू मेक ए विल देयर आर 4 पीपल हु आर इन्वॉल्व. नंबर 1 आप, नंबर 2 एग्जीक्यूटर, नंबर 3 है जिसको आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं. एग्जीक्यूटर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिसको प्रॉपर्टी दे रहे वो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं. और नंबर 4 है विटनेस. विटनेस मिनिमम 2 चाहिए. तो मैं आपको एक एक बात समझाता हूँ. पहला, नॉर्मली विल में ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटर का मतलब होता है कि आपका मीन्स जिन्होंने विल बनाया है उनका डेथ के बाद कौन वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. अगर वो आदमी के पास 4 फ्लैट हो या और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो तो जब एक्सपायर हुआ तो आदमी नहीं रहा, तो बाद में वो सब करेगा कौन? इसको ये प्रॉपर्टी इसके नाम पे, अभी जो डेथ हुए उसके नाम पे, तो प्रॉपर्टी उसके नाम पे टेक्निकली ट्रांसफर होना चाहिए. तो उसके लिए वो सब काम कौन करेगा? तो उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं मीन्स लीगल लैंग्वेज में, जो विल एग्जीक्यूट करता है. विल ने जैसा बोला है कि इसको ये प्रॉपर्टी देना है तो वो एग्जीक्यूटर रहता है. तो पहली बात उसमें रहता है विल का, इसमें एग्जीक्यूटर, जो वो विल कैसा, ये आपको जब ड्राफ्टिंग का आएगा तभी मैं ले लूंगा ये टॉपिक. तो वो एग्जीक्यूटर होता है. दूसरी बात उसमें रहना चाहिए कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका आप डिटेल डालो. डिटेल आपको प्रॉपर्टी, डिटेल प्रॉपर्टी ओन बाय पर्सन, तो आप जो भी प्रॉपर्टी ओन करते हैं वो उसमें डालो. तीसरी बात आती है कि वो प्रॉपर्टी आप किसको देना चाहते हैं. यानी आपका एक फ्लैट है, वो मैं इसको दे रहा हूँ, ये बच्चे को दे रहा हूँ. ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बोल रहे मैं दे रहा हूँ मेरे नेफ्यू को या मेरे लड़की को दे रहा हूँ, या जिसको आप उसमें से क्लियरली डालना चाहिए आपको. मैं आपके पास ये प्रॉपर्टी है, इसमें से मैं इसको ये दे रहा हूँ, उसको ये दे रहा हूँ. तो आपको उसमें क्लैरिटी चाहिए किसको कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर में होती है कि वो सिग्नेचर किया हुआ चाहिए. आप ऐसे बोले और किसी ने लिख के दिया वो नहीं चलेगा, आपको विल पे सिग्नेचर करना चाहिए.
और जब विल पे सिग्नेचर करते हो तो उसको दो पीपल ये जरूरी है, अगर दो पीपल उसको सिग्नेचर अटेस्ट करना चाहिए यानी वो उसमें विटनेस होना चाहिए, दो विटनेस जिन्होंने आपको देखा आपने सिग्नेचर करते हुए, या आपने उनको बोला ये मेरी सिग्नेचर और उसके बाद वो विटनेस होता है। विल बनाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में जिस भी तरीका से लिखना चाहते हो आप विल बना सकते हो, उसीलिए कोई फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फॉर्मेट है ना, ये हम लोग ने बनाया है, एडवोकेट लोगों ने बनाया है, नहीं तो हम लोग पैसा कैसा कमाएंगे, बराबर है ना। हम पैसा कमाना चाहिए, अगर आप हम बोले कि नहीं सिंपल भाषा में लिख सकते हो, वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो फिर हम पैसा नहीं कमा सकते ना। दैट इज द रीजन वी आर मेड सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मेट, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है लॉ में कि यू हैव टू फॉलो ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो ये बात क्लियर है कैसा विल बनाना होता है, विल में रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये बात क्लियर है। अगर क्लियर है आपको तो जस्ट टाइप में इससे व्हाट्सएप में अपना चैट बॉक्स में डालिए नंबर 1। यस, गौरेश, शर्मिला, some question was there. ओके ओके, तो ये बात बाद में आ जाती है कि विल तो बनाया मैंने, आज मीन्स टुडे आई वाज थिंकिंग दैट आई विल गिव दिस प्रॉपर्टी टू XYZ, तो कल मेरा मन चेंज होता है, टुमारो आई मेक माय माइंड चेंजेस, सो वेदर आई कैन डू इट, वेदर आई कैन चेंज इट, यस। once you make a will, you can change it 101 times, no one is going to stop it, anytime anywhere you can change, you can modify, you can revoke anything। यानी आप विल में एक बार बनाने के बाद आप उसको जो चाहिए वो बाद में चेंजेस करते हो, कैंसिल कर सकते हो, जो चाहिए कर सकते हो। उसके लिए आपको बस दूसरा एक डिक्लेरेशन देना है, लिखना है कि मैंने इसी दिन विल किया था, वो मैं कैंसिल कर रहा हूं। उसके लिए आपस कोई चीज की फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर विल आपने बनाया है, यू आर रजिस्टर्ड द विल, देन आई विल सजेस्ट you again make a deed of cancellation of a will and register it. It is not mandatory but it's my suggestion। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप वो रजिस्टर करो डीड ऑफ कैंसलेशन। ठीक है, तो इज इट क्लियर दैट आपने एक बार विल बनाया, यू एनी टाइम यू कैन चेंज, रिवोक, कैंसिल, कुछ भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आई कैन गो अहेड, if I can go and just put A in the chat box। मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि मुझे समझे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ओके, यस यस, थैंक यू संदीप, प्रदीप, थैंक यू, यस दिवाकर, यस थैंक यू, यस। तो बाद में एक सवाल आता है कि विल को रजिस्टर करना चाहिए या नहीं। सी, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इट्स वेरी क्लियर, will does not require registration। ये बंधन कारक नहीं है। जस्ट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा नहीं तो आप लोगों को देर हो जाएगा। will does not require registration, और आपको अगर रजिस्टर करना है तो दो तरीका होता है उसका। एक, जैसे अपन नॉर्मल डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने को जाते हैं उस तरीके से रजिस्टर करते हैं। दूसरा तरीका है
कि आपका विल आप एक एनवलप में पैक करके रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को देते हैं, जो वो विल सेफ कस्टडी में रखते हैं। उसको उन्होंने दे हैव टू मेक ए रिसिप्ट दैट दे हैव रिसीव्ड and they have to register it. They have received what? A packet containing will. They are not entitled to open it. They cannot open that will. It is in the registered seal envelope. So they have to keep it with themselves. And after the death of a person, the person who is entitled for anything then can make an application. And जब वो आदमी का देहांत, विल रजिस्टर करने के दो टाइप है। एक तो अपन जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हो वैसे विल करते हैं। दूसरी बात है, दूसरा ये आता है कि आप विल बनाओ, विल एक पैकेट में सील करो और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास देते हो। तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का कर्तव्य बनता है कि वो सील कवर में अपने कस्टडी में लेके, उनका एक बुक नंबर मेरे ख्याल से नंबर 5 है, जिसमें वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। एंड ही रिकॉर्ड्स इट so that record is that the will has been deposited in a packet with him. So these are the two way will रजिस्टर करते हैं। तो क्लियर है? इस पे क्लियर है तो एस करो, अगर नहीं क्लियर है तो नो करो। एक मिनट, व्हाट इज दिस क्वेश्चन राकेश? In first case we are not registerable, but cancelling it we have to register the cancellation. What about new will after cancellation? Does it need to be registered or simply do early? Okay. I think this is the question. See, Rakesh, you are there? Okay. सवाल ये आता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसलेशन, मेरे को ऐसा दिखा, मेरे को थोड़ा सा मेरा चैट मेरा आगे हो गया। एक मिनट, मैं जस्ट आई लेट नो। कुछ ये हो गया। In the first case, we have not registered the will, but for cancelling, you have to register the cancellation. नहीं, आपने in his first case, we have not registered the will, but for cancelling, we have to register the cancellation. What about? You have not registered the will, but for cancelling. See, पहली बात तो registration is not compulsory. Registration is not compulsory. लेकिन अगर कैंसल रजिस्टर्ड विल हुआ है तो आप रजिस्टर्ड विल से रजिस्ट्रेशन से कैंसिल करें। अगर विल रजिस्टर नहीं, देन नो वे ऑफ गोइंग फॉर कैंसलेशन। आप क्या कैंसिल करोगे आप अगर विल ही रजिस्टर्ड नहीं है? आई डोंट नो व्हाट इज दिस कमिंग बिटवीन। ओके, shall I proceed further? Put yes if someone has not understood. I think Rakesh has going difficulty. Sweetie, can you see that messages? Okay, I'll go proceed further. If you have anything, you let me know. Can will be deposited? Is there any time limit so that within 1 year after making? ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है गिरीश की विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड विल रजिस्टर करना चाहिए, ऐसा कोई ये नहीं होता है। और नॉर्मल डॉक्यूमेंट को होता है 4 महीने। देयर इज नथिंग, नो सच थिंग एज प्रोविजन दैट विल, बिकॉज़ इट्स ऑप्शनल। ओके, आई विल प्रोसीड फर्दर। ओके, देन क्वेश्चन कम्स whether any stamp duty is required. नहीं, कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं रिक्वायर। विल के लिए ना स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर है, ना रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। विल इज जस्ट यू कैन राइट ऑन ए प्लेन पेपर एंड नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। तो आई थिंक
हाँ जस्ट एक आगे ले लेता हूँ, आगे थोड़ा। फिर प्रोबेट। प्रोबेट क्या है? जब विल होता है और विल if is in respect, if is made by a person who is of Bombay and which is made in Bombay and which is in respect of property in Bombay, there are two criteria. एक तो बॉम्बे में आदमी ने बनाया है विल, तो उसको प्रोबेट लेना पड़ता है, या बाहर कहीं बनाया है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है विच इज इन बॉम्बे, तो भी प्रोबेट लेना पड़ता है। सो प्रोबेट यानी क्या? व्हाट इज ए प्रोबेट? प्रोबेट कुछ भी नहीं है, एक सर्टिफाइड कॉपी होता है कोर्ट का, कोर्ट उसके पर छापा मारती है कि यस दिस इज द विल, दैट्स ऑल। तो उसके अंदर लिखा हुआ बराबर है, उसकी प्रॉपर्टी उसमें दिया, इसको दिया है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई नहीं है। जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फिर रुका दूंगा, इधर एक ब्रेक लूंगा, एक 5 मिनट का ब्रेक दूंगा आपको, और रोटरी क्लब से कुछ बात करेंगे वो लोग। तो जब दो प्रोबेट बनता है तो एक सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी होती विल, और उसमें सपोज एक आप उसमें उन्होंने लिखा है कि एक पर्टिकुलर फ्लैट उन्होंने अपने बच्चे को, लड़के को दिया है, लेकिन फैक्चुअली वो फ्लैट उनका है ही नहीं। तो उसका मतलब नहीं है कि कोर्ट ने उसको सर्टिफाई किया मतलब वो आदमी का वो फ्लैट बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल है कि विल जिस तरीके से करना चाहिए था, जिसको 2 विटनेसेस है, वो उसको उसने बनाया है करके, दैट्स ऑल विल इज सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल, प्रोबेट नहीं। ठीक है, कैन आई प्रोसीड फर्दर? टाइप PS इन द चैट बॉक्स। देन आगे सवाल आता है, व्हाट इज लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट विल एंड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विथ विल। यानी क्या है? लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट विल का मतलब होता है आदमी ने विल कुछ बनाया नहीं है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी कौन संभाले, कौन देखे, किसको जाए, तो उसके लिए लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। दूसरा होता है लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विथ विल, का मतलब होता है उन्होंने विल बनाया है लेकिन उसमें एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं किया है। सो ये 2 तरीके का होता है लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वन इज लेटर्स ऑफ, ये लेटर्स है यार, ध्यान रखो, लेटर नहीं है, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आप अगर इंडियन सक्सेशन एक्ट में देखोगे तो लेटर नहीं है, लेटर्स होता है। तो इधर यहाँ पे लिखा आया नहीं है लेटर, लेटर्स आया है। तो इस ऐसे 2 तरीके के लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बाद में विल जस्ट टच व्हाट इज सक्सेशन सर्टिफिकेट। ए सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है जो नॉर्मली मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होता है, जैसे शेयर हो गया, आपका बैंक हो गया, तो वहां पे वो सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, वो मीन्स वो भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी यू आर सक्सीडिंग इस प्रॉपर्टी करके होता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे रुका रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक तो खत्म नहीं होगा, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। एंड ब्रेक दे रहा हूँ यानी आपको कोई शंकर जी कुछ बात करेंगे, और बाद में आपस में आपको रील अपना विल कैसा लिखना है, हाउ टू ड्राफ्ट ए विल, ये आपको दिखाऊंगा कैसा ड्राफ्ट करना है। एंड उसके बाद अपन क्वेश्चन एंड आंसर रखेंगे। तो आपका मैंने कोई चैट मिस हुआ हो, देखा नहीं हो, तो डोंट वरी, आप मेरे को यू कैन स्पीक विथ मी एंड वी विल कंटिन्यू। शंकर जी प्लीज टेक ओवर। Thank you, Girish, for giving a nice information regarding the will, how to create will and what is will, why it is required. And further more details we will be taking after a short break. Now till Girish takes a few minutes break, I take this opportunity to give you a short details regarding Rotary Club.
for which I like to introduce Rotarian Biswaranjan Sabat. I first introduce Biswaranjan. Biswaranjan joined Rotary in the year 2012. He was a smart president in the year 2019-20. He has served as a Avenue Chair for membership, currently working as a Joint Director for membership for the District 3142. He works in senior management position for BFSI segment. He is happily married to Josna with 2 kids, Aniket and Divyansh. Vishwajit, you can take now. Thank you. It was a wonderful introduction from the EA. So basically on the why should I join Rotary? That's a good topic. And what are the advantages for joining a Rotary club? I joined in 2012. I was a Rotaractor. I'll share my experience. I never thought that I will travel 10-12 years in Rotary. जो बोलते हैं कि आप चलते गए, कारवा बनते गया, एंड जिंदगी के बहुत सारे आपके जो समस्या है बिकॉज ऑफ रोटरी इट गॉट सॉर्टेड आउट, एंड दैट हैपेंड ट्रूली विथ मी. एंड आई विल गिव एन एग्जांपल्स, एंड विद दैट in Bombay, when the neighbors do not know each other, or in any of the metros or anywhere when the people don't know each other, you get a professional networking. So today, see the irony, today you are listening to one of the elite speakers on will. Think how many of the non-Rotarians, yes, many non-Rotarians are there, but they are invited by Rotarians or they are friends of Rotarians. How many non-Rotarians get such opportunity to learn and to be part of such professional group? Tomorrow you need any professional assistance, you can go to Mr. Girish Rao and you can ask, and believe me, a Rotarian assisting you is totally different than some other guy. I'll give an example. So see, doctors, we have a lot of doctors who are Rotarians. So when someone say, I have got a doctor Rotarian, I say that doctor being a friend and friend being a doctor is different. Lawyer being a friend or friend becoming a lawyer is different. So when you are in Rotary, when one is in Rotary, he gets a lot of friends who are doctors, who are engineers, who are chartered accountants. So that one will never get ever if he is not part of this professional movement. Service opportunities. हमारे पास बहुत कीड़ा होता है, बहुत कुछ करने के लिए होता है, हम नहीं कर पाते. अरे मैं ये नहीं कर पाया, मैं इसको नहीं कर पाया, वैसे नहीं कर पाया. So this gives a lot of opportunities for you to serve people. Do whatever you want. International awareness. Sitting here, I can see many of the people in Noida are listening to this lecture. Similarly, there are many international speakers where we see sitting at our place, we see and our people and our kids can join for Rotary Youth Exchange. There are a lot of exchange programs, lot of one can go and join the international conference. You won't get if you are not part of this elite movement known as Rotary. Today, we are 1.2 million Rotarians across the world who try to change the world by our motto, service of self. The best part, Rotary believes in fellowship, and that is what where friendship comes. You get, it is being said that you have friends only up to class 10 or plus 2, and you don't get friends, or in college, you don't get friends thereafter. That phrase gets changed when you join Rotary. Rotary has a lot of friends, you make a lot of friends, you make a lot of people around you, and they become your well-wishers or your people before then your relatives. Youth and family, lot of things are there for your kids which Rotary gives. There are a lot of programs in Rotary which kids and the youth can get by being part of Rotary. Entertainment, we are social animal,
we need little bit of fun, masti and all. Rotary gives and such a fun and frolic avenue for whether it is family night, whether it is picnic, whether it is discon. One example of discon, the who's who of the country come to discon, and being a Rotarian, you get an opportunity to meet them, to listen to them. Otherwise, anyone would not have got an opportunity. So this is, Rotary gives a lot of opportunities. Friends who are not Rotarians, I request you to join Rotary by going to your nearest club. You will take the best decision. I bet you will take the best decision in your life, and you will never repent for it. Over to President to take it ahead. Thank you, Vishwaranjan. He has given a very short information regarding Rotary. If anyone requires more information, they can contact us anytime. I request the people who are staying in Ghodbandar Road area can join our club. For that, you can contact us anytime. And I request Girish now to continue the further lecture. Thank you, Vishwajit. The wonderful information about the Rotary you gave. It's really amazing. And I will request every one of you to join the Rotary in your respective area. Let me tell you, it's a different altogether experience. So I will request you to join it to understand what difference it will make in your life. Okay. I will continue now with our drafting of will. So I told you specifically there has to be 5 things rather. One is that you have to appoint the executor. Second, you have to say about the property. Third, who that property is going to go. And fourth, there has to be 2 witnesses. So यही एक 4 चीजें आपको आपके विल में चाहिए. एनी स्टैम्प ड्यूटी, जस्ट एक सवाल दिख रहा है मेरे को. एनी स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी paid for obtaining probate. Yes, it's not stamp duty, it's a court fees which has to be paid, and that maximum court fees is 75,000 rupees. Yes, joint will भी कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा. Okay, now we'll proceed with drafting of a will. So being an advocate, मेरे मुंह में drafting ही आता है मेरे को सिंपल रखना था writing of a will. तो अभी अपन writing of a will के तरफ जाएंगे. So let's proceed how to write a will. मैं एक फॉर्मेट के साथ आपको अब शेयर करता हूँ स्क्रीन शेयर में. ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? अगर दिख रहा है तो जस्ट चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस करके, और या सी करो, SE भी डालो या जस्ट सी भी टाइप करो, so that I understand you are able to see my screen. Okay, मधुरा, चंद्रकांत, गुड. मैं एंड ऑफ द डे में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अच्छा टेस्टिमोनियल मेरे को ग्रुप में डालिए. And this will be request from me. If you are like this webinar, what we are doing, I will request everyone to put a good testimonial about me, so that will help me also to have more such this webinars. Okay. तो आपको बोला था 4 चीज चाहिए आपको. पहला चीज होता है आपका नाम आता है. I dash and dash Indian habitant hereby revoke any previous will or any testamentary writing that I may have executed and declared. इसका मतलब क्या होता है? एक तो ये बहुत क्या बोलते हैं हम लोग, लीगल लैंग्वेज तो लीगल लैंग्वेज बोला, ये लैंग्वेज की जरूरत नहीं है. लेकिन व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर इज दैट कि आई एम
रिवोकिंग यानी मैंने अभी तक जो भी मेरे प्रॉपर्टी बारे में अगर मैंने कोई विल बनाया होगा या ऐसा कुछ मैंने लिखा होगा, वो मैं ये वो कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, एंड आई एम मेकिंग दिस माय लास्ट विल। यानी ये लैंग्वेज नॉर्मली यूज होता है, तो इसके लिए मैंने रखा है। तो आप एक 100 बार भी विल बनाएंगे ना, तो भी यही लिखना है आपको। ये मैं शेयर करूंगा, ग्रुप पे डालूंगा, आपको यही लिखना है कि दिस इज माय लास्ट विल। 100 बार लिखेगा तो भी, क्योंकि उसके बाद का ये लास्ट विल होता है जब आप बनाते हैं। तो एक जस्ट कॉपी पेस्ट कीजिए, चल जाएगा। ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा होगा, दूसरा कोई और एक विल लेके आता है और बोलता है भाई ये सब ने इन्होंने बनाया था 2020 में, अरे ये विल 2022 का, इसमें अलग है। तो नॉर्मली लॉ से इसकी व्हाट एवर लास्ट विल इज टू बी एक्सेप्टेड एज ए दिस थिंग। बट लेकिन वो आपको क्यों चाहिए? अगर आपके पास मालूम है कि पर्टिकुलर दिन में आपने अगर कुछ बनाया है, तो स्पेसिफिकली वो डालिए उसमें, और ये इसमें विल में डालिए कि ये दिन पहला जो विल बनाया था वो कैंसिल होता है। जनरल मत कीजिए अगर आपको मालूम है तो, नहीं तो ये जनरल होता है। तो पहला मैंने बोला था आपको एक अपॉइंट करना है एग्जीक्यूटर, यानी जो ये विल कि आपका मीन्स आफ्टर द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग, उसके मौत के बाद जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, तो उसका नाम आएगा एग्जीक्यूटर। तो उसका नाम डाला, किसी को जो अच्छे पहचान वाले हैं उसको आप अपॉइंट करेंगे, जो आपका ट्रस्टी बनेगा बेसिकली, कि जिसको ये प्रॉपर्टी देना है। देन नॉर्मली आता है कि देहांत का जो खर्चा है वो कितना आपका खरे, वो आप उसको लिखते हैं कि ये इतना इतना खर्चा मेरे डेथ का इसके ऊपर वगैरह खर्चा करे करके। दैट इज वन पार्ट उसमें होता है। बाद में क्या होता है, नॉर्मली मेरे लीगल एयर कौन है, मेरे को वाइफ है, बच्चे है, ये सब के बारे में एक डालो आप, क्योंकि समझ में आया कि नॉर्मली तो विल से नॉर्मली बहुत नहीं 80% तो नॉर्मली अपने बच्चों को ही देते हैं, बाहर वाले को नहीं देते हैं। लेकिन कौन लीगल है करके ये डालो बाद में। और अगर आपका कोई लीगल है यानी आपका कोई दूसरा भतीजा है, भांजा है, जिसको आप प्रॉपर्टी देना है, तो वो भी डालो, जिसके नाम है वो भी है करके वो डालो। आपके फैमिली में कौन है बेसिकली, यानी किसको आपको देना है बेसिकली, उसके लिए एक इंट्रोडक्शन है। तो दिस इज बेसिकली ए इंट्रोडक्शन कि आई हैव लीगल, आई हैव माय वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन नेमली सो एंड सो अनमैरिड डॉटर, जो भी है एक एक फॉर्मेट में डाला। बाद में व्हाट प्रॉपर्टीज यू आर हैविंग, मींस बेसिकली आपकी ये प्रॉपर्टी है जो आप किसी को देना, मीन्स आपके लीगल एयर से जिसको भी आप देना चाहते हैं उसके बारे में आप डालते हैं। तो आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, कंपनी के शेयर है, फ्लैट है, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, यानी जैसे लैंड है आपका, बैंक अकाउंट है, या कोई कंपनी में आपका कंपनी में शेयर होगा, या आपके पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर हो। तो आपके पास जो भी है, आपके पास जो भी संपत्ति है, मूवेबल इमूवेबल, आपके पास सोना जो रहेगा, वो सब के बारे में आप उसमें डाल दो। तो उसके बारे में ताकि क्या होता है, कोई उसके बारे में झगड़ा नहीं हो। आपका सोना होगा या बैंक अकाउंट होगा, जो भी चीज है, यू आर टेलिंग कि you are having this kind of properties whatever is stated in it. तो वो प्रॉपर्टी डाल रहे हैं। बराबर है? अभी तक जो मैंने बताया बराबर क्लियर है क्या आपको? तो if it's clear please type yes, clear, CLER. Yeah, intellectual property is also right, that also you can do if you are owning that intellectual property. Yes, see, good meaning. Okay. Yes, Manoj. ओके ओके ओके। तो आप ये सब डाल रहे हैं, पहला एग्जीक्यूटर ने जो ये विल उसके बाद ये करेगा, मींस जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मेरे को जस्ट याद दिला दीजिए एग्जीक्यूटर के बारे में, मैं कुछ ज्यादा बोलना चाहता हूँ कि कैसा वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी। हाँ, बाद में होता है आपने प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की किसको देना है, सॉरी आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके बाद आप वो प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं। एक मिनट जस्ट होल्ड, जस्ट लैपटॉप है। तो आप वो प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं, तो उनका नाम लिखिए। आई हियर बाय डिवाइस एंड बीक्वेथ, ये हम वकीलों की लैंग्वेज है।
तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वही लैंग्वेज यूज करे। तो आई हियर बाय डिवाइस एंड बिक्वेट करके ऐसे कोई लैंग्वेज जरूरी नहीं कि ये प्रॉपर्टी है मैं इसको देना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी मैं उनको देना चाहता हूँ। बस किसको क्या प्रॉपर्टी आप देने वाले हो वो लिखिए, बाकी कुछ जरूरत नहीं। ये लैंग्वेज जो मैंने इसमें डिवाइस एंड बिक्वेट, ये भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोलो कि ये प्रॉपर्टी मैं इसको दे रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी मैं उसको दे रहा हूँ, बस। और कुछ नहीं आएगा आपके विल में। एंड मीन्स यही है, ये प्रॉपर्टी मैं उसको दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। और आखिर में आपकी सिग्नेचर आएगी और उसको आपको 2 विटनेसेस लगेगी। अगर ये 2 विटनेस नहीं है तो ये विल कोई काम का नहीं है, ये डस्टबिन में आप फेंक दो। See, please very clearly understand there has to be 2 witnesses. If there are no 2 witnesses, then that will has of no value. It has to be thrown into dustbin. Nothing else. It has got no legal validity. So this is a very simple way. एकदम आसान तरीका है विल बनाने का। आपको ना वो स्टैम्प पेपर की जरूरत है, आपको कोई पर्टिकुलर पेपर की जरूरत है, तो कोई जरूरत नहीं है। सिंपल है विल बनाना। किसको आप कौन सी प्रॉपर्टी देना चाहते हो, बस आपको यही लिखना है विल में। और उसके लिए आपको 2 विटनेसेस चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपके लीगल हेयर कौन है, मीन्स आपके फैमिली को, वो नहीं दिखेगा तो भी चल जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने को आपको यही बोलना है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है जो मैं इसको देना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। और ये डॉक्यूमेंट के लिए 2 विटनेसेस चाहिए। ठीक है, आपको समझा? इतना सिंपल है विल बनाना। हम लोग उसके लिए हजारों या कभी कभी बड़ा विल हो तो लाखों में भी चार्ज करते हैं। तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ गिफ्ट करके मेरे तरफ से। तो इतना सिंपल है विल, कोई कॉम्प्लिकेशन उसी में है ही नहीं। तो ओके, देन आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक कि विल कैसा होना चाहिए। तो नाउ विल टेक ए क्वेश्चन इफ anything we have. I think we'll take the, I think राकेश ने सब मेरे को लिस्ट बना के दिया है, तो let me just go through that. कोई सवाल है आपको? एनी क्वेश्चन ऑन हाउ टू ड्राफ्ट ए विल, कैसा विल बनाए? एकदम सिंपल है कि नहीं सिंपल? अगर आपको लग रहा है सिंपल तो टाइप कीजिए सिंपल, और नहीं तो नो करके डालिए। ओके, अपन एक सवाल लेंगे। हाँ, कोई मेरे को डायरेक्ट मैसेज आता है ना तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आप अगर इसमें डाले ना। ओके, वो सब एक सवाल लेंगे। राकेश, आई थिंक आई विल जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। इज प्रोबेट मैंडेटरी? राजमोहन टू एवरीवन। या just girl. Yeah, just let me just take. First, let me stop screen sharing. या मैंने अनम्यूट देमसेल्फ ऑप्शन ओपन कर दिया है, तो जस्ट चेक वेदर, बिकॉज वहां पे बहुत ये आ रहा था, तो आई थिंक यू कैन अनम्यूट, जस्ट चेक बस। लेकिन बाकी लोग जो बात करेगा वही अनम्यूट करेगा, बाकी लोग म्यूट में रखो। अभी भी मेरे को आवाज सुन रहा हूँ, तो रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं सोनाली बोल रही हूँ। हाँ, आपको सोनाली, पूछना था ये प्रोबेट कैसा करते हैं विल को? अच्छा, पहले बात, प्रोबेट जो होता है ना, जो सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में होगा, उन्होंने विल वहां पे बनाया होगा या प्रॉपर्टी वहां पे होगी, तो ही प्रोबेट की जरूरत होती है, नहीं तो नहीं होती। तो आप किस स्टेट से हो वहां पे उसके ऊपर वो प्रोबेट होती है। प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है कोर्ट में, जिसको हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में टेस्टामेंट्री एप्लीकेशन बोलते हैं। तो वो एप्लीकेशन करना पड़ता है फॉर ऑब्टेनिंग ए प्रोबेट। प्रोबेट के बाद एक प्रोसीजर होता है, जो भी लीगल हेयर होते हैं जिनका एक्सपायर हुआ है, उनको सबको नोटिस देते हैं, बाद में उनका
ऑब्जेक्शन है तो वो डिसाइड करते हैं, उसके बाद प्रोबेट देते हैं। Clear मतलब है? जब विल हाँ। बनाते वक्त प्रोबेट करना होता है। नहीं नहीं नहीं, विल बनाने के लिए, विल आपने एक बना दिया, प्रोबेट का मतलब क्या है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल, यानी विल का एक सर्टिफाइड कॉपी, यानी कोर्ट का एक सिक्का रहता है कि ये विल जो है आपने बनाया, यानी अपने, यानी जो जो डिसीज है, जो देहांत हो गया, उन्होंने ये विल बनाया है करके, बस एक छापा रहता है विल का कोर्ट के ऊपर, वो विल के ऊपर एक कोर्ट का छापा रहता है, एक फॉर्मेट रहता है उसके लिए, यानी वो फॉर्मेट के साथ तो विल का एक कोर्ट का छापा रहता है, बस ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल है। जैसे आप कोई भी चीज का सर्टिफाइड कॉपी लेते हो ना, वैसा ही वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल होता है, नथिंग एल्स। सर एक हाँ। क्वेश्चन था। कौन अमित पूछ बोल रहे हैं? आप पहला आपका नाम हाँ। पूछिए, बोले, और फिर सवाल पूछिए। ओके। अमित बोल रहा हूँ, अमित हाँ मोहन बोलिए। जागड़ा। हाँ हाँ सवाल ऐसा था कि आपने बोला कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास ये जुरिस्डिक्शन में डेथ हुआ है तो प्रोबेट की जरूरत होती है। हाँ अदर देन दिस जुरिस्डिक्शन या फिर प्रॉपर्टी, ये जुरिस्डिक्शन को छोड़ के अगर कहीं पे है और डेथ हुआ है, विल भी बनाया हुआ है, हाँ। तो उसको एग्जीक्यूटर ने एग्जीक्यूट कैसे करना है? मतलब वहां पे तो प्रोबेट नहीं है, कोर्ट ऑर्डर नहीं है, तो हाउ टू मूव अहेड? या सी, जब पर आदमी का देहांत होता है तो एग्जीक्यूटर का काम रहता है कि वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करे जैसा उसने बोला है करके। तो उसके लिए आपको डिपेंडिंग अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रहती है, उसको आपको डीड ऑफ ट्रांसफर करना पड़ता है। और अगर आप देखें, आप कहाँ से है? आप महाराष्ट्र से है? यस, महाराष्ट्र। ओके। तो आप स्टैंप एक्ट में देखेंगे, डीड ऑफ ट्रांसफर के लिए मेरे ख्याल से ऐसे, यानी जो एग्जीक्यूटर डीड ऑफ ट्रांसफर करता है उसको 100 रुपए या 200 रुपए की स्टैंप ड्यूटी है। तो वो ट्रांसफर बस ये है, ये इनको ये दिया गया है करके वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ओके। सिर्फ 200 रुपए के डीड ऑफ ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके लिए एक फॉर्मेट मीन्स एक ये होता है, क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है डीड ऑफ ट्रांसफर, जिसमें आपको पूरा उसके प्रॉपर्टी के बारे में डालना पड़ता है, ये दिन इनका देहांत हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट, विल का कॉपी, ये सब लगा के आप वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर सकते हो, डीड ऑफ ट्रांसफर। ओके, थैंक यू सर। केसी गर्ग गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मैं हाँ, asked बोलिए। you, हाँ ये you know the one person has made the bill and where it has to be kept. Number one, if it is to be kept with the executor and executor dies himself, then how to deal with this situation? See, will कहाँ पे रखना है, अभी ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड है। हो सकता है कि वो बेनिफिशियरी के पास भी रख सकते हैं, वो ऐसा कोई उसमें ये नहीं, इट्स ऑल प्रैक्टिकल कन्वीनियंस, यानी विल यानी बेसिकली वो अवेलेबल होना चाहिए कि उनका देहांत होने के बाद वो विल अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो किसी को दे दिया और लेके गायब हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजन, डिपेंड की फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे कि कहीं किसको कहाँ पे वो विल जाना चाहिए, कि कहाँ पे वो रखना चाहिए। वो जो आदमी विल बनाता है उसके बारे में वही बोल सकता है कि वो यहाँ पे रहेगा, पर्टिकुलर जगह रहेगा तो ये सेफ रहेगा, और ये आदमी रहेगा वो बराबर संभाल रहेगा। और एग्जीक्यूटर, आइडियली मैं बोलूंगा, एग्जीक्यूटर आप जिसको अपॉइंट करते हो उसको आपको भरोसा रहता है कि ये आदमी मैं जाने के बाद ये प्रॉपर्टी बराबर वो डिस्ट्रीब्यूट दे देगा जैसे विल के। इसके लिए आई विल सजेस्ट एग्जीक्यूटर के पास रखे तो ज्यादा अच्छा होता है। बट अगर सर उसको ईमेल पे भेज दे बेनिफिशियरी को और कुछ फ्रेंड्स के पास, हाँ, मिसयूज ना हो, हाँ, तो विल दैट हेल्प? इट कुड हेल्प। सी, एंड ऑफ द डे अगर ये डिस्प्यूट हो जाता है कि ये विल बनाया नहीं बनाया है, तो इन दैट केस आपको विल प्रूव करना पड़ेगा कि ये विल उन्होंने बनाया है कर। एक्सेप्ट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, देयर इज नो नेसेसिटी टू प्रोबेट। लेकिन जब कोई चैलेंज विलेंज हो जाता है, इन दैट केस आपको बाकी जगह भी आपको प्रोबेट लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर इश्यू ऑफ प्रोबेट, ऐसा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि प्लेन पेपर में बनाना और स्टैम्प पेपर में किसमें बेनिफिशियल है? दूसरा, नोटराइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये देखो, पहला चीज वेरी क्लियर है, स्टैम्प ड्यूटी अट्रैक्ट नहीं होती है विल को, तो दैट इज नंबर 1।
दूसरी बात, नोटरी का भी कोई प्रावधान नहीं है। आपको विल के लिए दो ही जरूरी थे, दो विटनेस चाहिए। एडवांटेजेस इसके लिए होता है कि नोटरी बोल सकता है ये लोग दो विटनेस है करके, बट देयर इज नो मैंडेटरी। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए दो विटनेस चाहिए, जिन्होंने जो विल जिसने बनाया है वो उन्होंने उनके सामने सिग्नेचर किया है, या सिग्नेचर किया है उनके सामने, या उनकी सिग्नेचर यानी सपोज एक आदमी ने विल बनाया, सिग्नेचर किया, बाद में दूसरे को बोलता है भाई तू विटनेस करके सिग्नेचर कर दे, तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या वो दो विटनेस के सामने ही हो, जिसने विल बनाया वो साइन करता है। सर मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि सोसाइटी मैटर को डील करता हूं मैं, हाँ, जिसमें कि विल भी नहीं बनाया, नॉमिनेशन भी नहीं भरा, आदमी की डेथ हो गई है, तो कोई एक फैमिली मेंबर सोसाइटी को प्रेशराइज करता है कि शेयर सर्टिफिकेट मेरे नाम पे कर दो, मुझे मेंबर बना दो। हाउ टू डील विद इट? तो आप कहाँ से है? नहीं, अभी मैं गुड़गांव में हूँ, बट मैं हाँ। पहले मुंबई नहीं, में भी इसके था लिए और पूछा, पूना में भी नहीं, था। नहीं, हाँ जी। आपको इसके लिए पूछा मैंने, क्योंकि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, तो उसमें ना प्रोसेस बताया है कि अगर डिसीज अगर मर गए उनका, अभी उसमें अमेंडमेंट भी हो गया 2019 में, कि उसमें जब कोई एक्सपायर होता है, इन दैट केस ही हैज टू गेट आइदर सक्सेशन सर्टिफिकेट या हेयरशिप सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। तो इसके लिए वो प्रोसीजर फॉलो करता है। ऐसा किसी को देखे सोसाइटी ने अगर विल बनाया, ऐसा ट्रांसफर कर दिया, वन इज दैट विल बी चीटिंग और फ्रॉड, तो वो तो क्रिमिनल एक्शन भी उसमें हो सकता है। लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट करना है, कि ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि उसको एज सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा या लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट लगेगा, जो सोसाइटी एक्ट में अमेंडमेंट के हिसाब से। सर अगर मेंबर से हम इंडेमनिटी बॉन्ड ले लें, लॉयर जो होना क्लेम चाहिए। कर रहा है, एक विल दैट हेल्प? क्या बोले आप? अगर जो मेंबर, उसका फैमिली मेंबर क्लेम कर रहा है कि मैं लीगल हेयर हूँ, हाँ। बट वो प्रूव नहीं कर रहा, बट वो एक इंडेमनिटी बॉन्ड लेके सोसाइटी सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट में नाम डाल सकती है? नहीं, सी पहले जमाने में उसके पास इंडेमनिटी बॉन्ड लेके ये करते थे, बट नाउ इट इज लीगली इम्प्रॉपर इनवैलिड। ओके, कौन पूछ रहे दूसरा? एग्जीक्यूटर लॉयर होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो रेफ्यूज करता हूँ, क्योंकि बाद में जो तकलीफ होती है सब काम करने की, वो बहुत होती है। और एग्जीक्यूटर और विटनेस सेम हो सकता है। एग्जीक्यूटर एंड विटनेस नो। गिरीश जी नमस्कार, आशीष मोगे बोल रहा हूँ थाना से ही। हाँ बोलिए आशीष जी। मुझे दो सवाल पूछना है। एक तो जो बिल बनाते हैं, हाँ, इज इट मैंडेटरी टू मेक इन एनी इंग्लिश ओनली और एनी इंडियन लैंग्वेज? कोई जरूरत नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में विल बना सकते हो। ओके। एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है। सेकंड, विटनेस जो हाँ। है वो फैमिली मेंबर्स ही होने चाहिए या फ्रेंड्स या एनी टॉम डिक एंड हैरी विल डू? Any Tom, Dick and Harry will do. Only you have to ensure अगर कोई चैलेंज की बात आती है तो आपको विल प्रूव करना पड़ेगा। तो विटनेस जरा अच्छा हो तो इट विल ऑलवेज गिव्स यू एडवांटेज, यानी आपको एडवांटेज होएगा। अगर किसी ने विल चैलेंज किया, बिकॉज वो जब विल चैलेंज होता है तो कोर्ट में आएगा तो विटनेस आना पड़ता है, तो यू हैव टू सी टू दैट ए प्रॉपर पर्सन इज अटेस्टिंग द विल। थैंक यू। ओके। Girish Hello. ji, good afternoon, हाँ। good evening. Girish Hello. speaking. हाँ बोले। Wanted to ask whether while making the will, is it हाँ। necessary to also make a doctor's certification See- saying that the will is being made in the good health and understanding? एक एडवांटेज आपको मिल सकता है जब आप विल बनाते हो। एक एडवांटेज, नॉट नेसेसरीली, बट एक एडवांटेज नॉर्मली होता है कि एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट इसके लिए दे। मैंने आपको बोला था कौन विल बना सकता है, उसमें एक क्राइटेरिया था, ए पर्सन हु इज ऑफ हु हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर पर्टिकुलर रीजन, और ए पर्सन हु इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ही इज डूइंग। जैसा आदमी एज ओल्ड, जैसा उम्र बढ़ जाती है, so he may not understand what he is doing. So that is the reason a doctor certificate, if you attach, you get an advantage. He is at least he has certified that he is of sound mind and he is understanding what he is aware of what he is doing. तो एक एडवांटेज एक आपको शायद थोड़ा मिल सकता है अगर वो सच्ची विल हो तो। It is not compulsory. It is not compulsory, absolutely.
Absolutely. Thank you. Hello. Hello. Yeah. Can you hear me, Hello. sir? Hello. हाँ बोलिए बोलिए कौन बोल I रहे am हैं? from Nashik हाँ and I have one problem to ask you. हाँ Suit for declaration and partition is being हाँ filed by the testator, by the son of the testator, okay and testator is the defendant. The defendant has executed the will in the 2019, हाँ and एक मिनट how defendant has executed the will he is alive executed still the alive will. testator is alive Testator is dead now. हाँ हाँ So what will be the effect on the suit of partition and declaration of that suit? no you mean to say during his lifetime of Yeah. the testator a suit Uh, was filed that's what you sorry, are telling वकील साहब. During his lifetime, एक Hello. मिनट एक मिनट हाँ एक सवाल नहीं, जो चालू लीगल होने दो लीगल प्रथम। लीगल आप कौन मैटर्स बोल रहे बाकी हैं? लोगों के लिए कंसर्न ना हो. Okay, okay. You can What is your discuss name? within. I will I note got down very and we can specific discuss generic tomorrow. questions. Yeah, yeah. Hey, this is very specific question. I would either like to leave Yeah, or. yeah, yeah. I And understand. if this is generic question, I got four आपका नाम क्या questions. था? नासिक से जो बोल रहे हैं आपका नाम क्या था? Advocate Avinash Kanore. हाँ अविनाश आप कल बात कर सकते हैं कि अपन आई थिंक आपका डायरेक्ट इस पे आ रहा है तो अपन कल बात कर सकते हैं Yeah, it is Okay, very okay, no specific and problem, sir. advocate related. We are not. या Okay, या अपन बात करेंगे इसके ऊपर हाँ Okay. अविनाश okay. आप ग्रुप पे है ना वो ग्रुप में या ओके ओके बोलिए बोलिए दूसरा अच्छा, कौन बोलना चाहते Can I हैं say, sir? या कौन बोल रहे हैं Okay, sir, I am Colonel Patil calling from हाँ. Khadki, Pune. Okay, okay. I got a very specific 4 questions because हाँ. there are a lot many guys must be waiting. ठीक है. हाँ, सबसे पहले कि क्या ये ऑडियो या वीडियो फॉर्म में हो सकता है या ओनली रिटर्न में होना चाहिए. दूसरा, क्या ये एक एक फाउंडेशन. का सवाल देते जाऊं मैं सवाल का जवाब देते जाऊं हाँ, बेहतर रहेगा. हाँ ये ऑडियो Single फॉर्म line में. वीडियो फॉर्म में नहीं हो सकता है लॉ रिक्वायर्स स्पेसिफिक थिंग इट इज टू बी राइटिंग इट हैज टू बी साइंड बाय अ पर्सन हु इज राइटिंग एंड देयर हैज टू बी 2 विटनेस सो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में विल नहीं हो सकता है. ओके. अभी वो लॉ पुराना था वी डोंट नो नाउ लेकिन एज पर लॉ स्टैंड्स टुडे यू कांट हैव इट. ओके, फॉलो सर. सेकंड, क्या यह फाउंडेशन या ट्रस्ट के नाम पे हो सकता है? यस हो सकता है यानी उसमें आप अगर ट्रस्ट को कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो तो आप दे सकते हो उसमें और आपको आपके प्रॉपर्टी की अगर ट्रस्ट बनानी हो तो हाँ, वो सर. भी आप अंडर द विल बना सकते हो विच विल टेक इफेक्ट आफ्टर योर डेथ. अंडरस्टैंड दिस. यू मेक ए ट्रस्ट but then it will get effect of it will be given to that after your death. वो ट्रस्ट बना सकते हो. ओके, लेकिन ट्रस्ट अच्छा ओके फॉर्म हुआ वो जरूरी नहीं है, बाद में बन सकता है अपने बाद. सी ट्रस्ट आपका फॉर्म अगर आज हुआ है तो आज वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं क्या? नहीं, तो विल अगर में आप लिख मेरे बाद विल पे लिख रहे हैं हाँ, कंडीशनल तो विल में क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी के लिए मैं ये ट्रस्ट बना इसका बनना चाहिए और आप डीड ऑफ ट्रस्ट वो विल को अनेक्स कर दीजिए कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है तो इसका ये ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट का उसमें पूरा आ जाएगा. ओनली एग्जीक्यूटर इज टू डू इज टू कंप्लाई विद दोस रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रस्ट डीड. ओके, अंडरस्टूड सर. थर्ड क्वेश्चन, क्या इसमें सेल्फ ओन्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दोनों का जिक्र किया जा सकता है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए विल के रूल अलग है और सेल्फ ओन्ड के लिए अलग है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका जो हक आता है हाँ, योर सर. राइट टू दैट एक्सटेंट यू कैन ट्रांसफर. आप अगर आपका 10%, 5%, 25% जो राइट है तो हाँ, सर. टू दैट एक्सटेंट यू कैन गिव इट बाय विल नॉट ए एंटायर प्रॉपर्टी. ओके, उसमें मेंशन करना होगा प्रॉपर्टी अगर मैं राइट अभी या यू कैन जैसे कीप इट माय पूरे भारत में अनडिवाइडेड लेके शेयर इन दिस HUF करके इनको जाता है करके दैट यू कैन पुट ऑलवेज. ओके, जिसमें आने वाली या जो सामूहिक है प्रॉपर्टी उसमें आने वाली नहीं लगी क्योंकि बाकियों के वारस नहीं लगे, क्या उसमें मैं लिख के छोड़ सकता हूँ ताकि जब भी आने वाली लगेगी जो मेरी वारिस लगेंगे तो तब थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ना गड़बड़ होता है. अनिवार्य मीन्स थोड़ा सा आई एम आने नॉट वाली इन द सेंस कि आपकी हिस्सेदारी उसमें आपका प्रोपोर्शन कितना है? नहीं आपका आप क्या करो उसमें यू हैव टू पुट वेरी क्लियरली से दैट
my undivided share in XYZ property. हाँ अनडिवाइडेड तो शेयर आपका 20% है, 40% है, 60%, जो भी आपका अनडिवाइडेड शेयर मैं इनको दे रहा हूँ इट XYZ शुड को. ओके अंडरस्टूड Okay. वन probably the last question Yeah. कि क्या जिसको आप क्या वो एग्जीक्यूटर वगैरह होता है क्या हाँ. जिनको मैं प्रॉपर्टी दे रहा हूँ हाँ. ये विल उन्हीं के पास छोड़ सकता हूँ या वो अगर मैंने छोड़ दिया और क्या उसके साथ छेड़छाड़ या डुप्लीकेसी हो सकती है रिलायबल हो ठीक है अगर नहीं हो तो क्या ऐसे कैसे सामने आती है कि मैंने दे दिया मैंने एक्स वाई को ये प्रॉपर्टी देनी थी लेकिन उन्होंने somebody he gave it to someone else उसमें चेंज कर लिया और मेरी सिग्नेचर्स ऐसा डुप्लीकेट ऐसा कर दी कुछ, हाँ समझ गया मेरे को. हाँ ऐसा एक प्रोटेक्ट करने के लिए दैट इज द वन वे ओनली टू रजिस्टर द विल, दैट इज द बेस्ट वे. ओके या डिपॉजिट करे वो विल एज ए रजिस्ट्रेशन. सर रजिस्ट्रेशन दो तरीके से हो सकते हैं, या आप डिपॉजिट करो विल. पता नहीं है मेरे को प्रैक्टिकली ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं. सर ओके ओके ओके. या ठीक है नेक्स्ट. थैंक यू सर रोटरी क्लब के बारे में मैं जरूर ज्वाइन करने के बारे में पूछूंगा बाद में सर से ओके पूछूंगा ओके ओके थैंक यू सर ओके आई एम ऑन लिसनिंग ओके ओके. किसको बोलना है अभी? Sir, I have a question. हाँ, Sir, आपका this नाम is क्या है? Moira from Malad. ओके. Sir, what I wanted to know is in a letter of administration without हम्म. will, in हाँ. that letter of administration, whoever is granted administration rights, will हम्म. that person get ownership of the property? मतलब that he can misuse then the property. No, वो yeah, he gets, possibility रहता है? yes, he gets basically ownership of the property. Okay, so it's not advisable to go for letter of administration without will. तो will बनाना बहुत जरूरी हो जाता है. Yeah, सिर्फ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपल चीज चालू हो जाता है ना फिर बाद में. तो बेसिकली विल का सी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा? जब आपने कोई विल बनाया नहीं होगा तब होगा. तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? तो आपकी जो प्रॉपर्टी है विल गो एज पर सक्सेशन एक्ट. आप हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जाएगी. इंडियन सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल है तो इंडियन सक्सेशन जिस भी आपकी प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंगली जाएगा उसमें. Okay, sir. Thank you. तो रजिस्टर कैसे करते हैं? रजिस्टर या अपन नॉर्मल डॉक्यूमेंट करते वैसा कर सकते हैं, या आप वो पैकेट बना के सील एनवलप में रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कर सकते हैं. तो उसका एक रजिस्ट्रार प्रोसीजर मतलब अपना जो रजिस्ट्रार. प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी जो रजिस्टर करते हैं उन्हीं के पास. ओके थैंक यू. Sir, मेरा another question is some person is हाँ. very old and he has made the will and हाँ. given to the beneficiary हाँ. and they do some mischief and kill him, something like that, just to acquire that property before. How that person can protect his interest? Very sad, but sometimes Yeah, understood that. I remember there is some place which, but I'm not able to recollect that. If a gift, but I don't see here Indian succession or anything, it has been dealt with in this manner. But I recollect, it's a good question you are asking, but I recollect somewhere. I will request everyone to put, if you want to say in the group, means I want the WhatsApp chat, the testimonial, it will have a lot of value for me for conducting this thing. So this is okay. It's nice that I could see right now, but I will appreciate if you put on the WhatsApp chat also. Ashish ji, please. Ashish ji, Pradeep ji. Okay. Sorry, coming back to it. लेकिन मैंने कहीं पे कुछ इस पे और पढ़ा था, मेरे को अभी याद नहीं आता कोई प्रोविजन में कि ऐसा कुछ हुआ, तो मेरे ख्याल से कहीं पे मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है. But there is some provision which deals with this thing. We can connect again and I will just record this issue. आपका नाम क्या है? Sorry. केसी गर्ग. हाँ, केसी गर्ग. मैंने पहले मैं थाना घोड़बंदर रोड पे रहता था. earlier also. Yeah, I understood. I was your neighbor before, अच्छा. हीरानंदानी एस्टेट में था मैं. Okay. Good. Okay. मैं आपसे कनेक्ट करूंगा. मैं महाराष्ट्र में अभी भी बहुत सारी सोसाइटी को हेल्प करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. श्योर. जी. और कौन? गिरीश जी, मैं के कुशवाहा बोलता हूँ नवी मुंबई से. हाँ, बोलिए कुशवाहा जी. मेरा एक छोटा सवाल ये है, आपने बताया कि 2 विटनेस का साइन करना मैंडेटरी है. तो सपोज करिए कि विल आज किसी ने बनाई, एक विटनेस ने 2 दिन बाद साइन किया, दूसरे विटनेस ने 5 दिन बाद साइन किया. इज इट वैलिड और नॉट वैलिड? ये कब वैलिड होगा?
जब जिसने वो यानी जो टेस्टेटर जिसने वो विल बनाया वो अगर उसको बोलता है कि भाई ये विल मैंने बनाई है तू इसको विटनेस करके साइन कर, तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज इट मे नॉट बी वैलिड। सपोज आप एक उदाहरण देता हूं आपको, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। You, a person makes a will and sends it to somewhere else to sign it, but he has not seen a person signing that will, nor he has उसके सामने उसने बोला नहीं है कि यही मेरा विल है यहाँ पे साइन कर। तो ये बहुत है ना डाउटफुल इश्यू क्रिएट हो सकता है जब उसको चैलेंज कोई करना चाहे तो बी केयरफुल। ओके, अंडरस्टूड। सर अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाए और विटनेस की डेथ हो जाए तो कोर्ट में कैसे जाएंगे? ये वही बोला, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑन सर्कमस्टेंसेस। यू हैव टू आइदर सी दोनों विटनेस अगर एक्सपायर हो गए, then there could be some external manner you can prove that there is been will has been executed. नहीं तो it will become a difficult. Okay. और कोई सवाल? Okay. हेलो सर, आई एम सूर्यकांत स्पीकिंग फ्रॉम मुंबई। हाँ, ये विल कैसे चैलेंज किया जा सकता है? विल कैसा चैलेंज किया जा सकता है? अगर ऐसा कोई विल हो तो यू कैन फाइल ए सूट कि ये विल नहीं है, डिपेंडिंग आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर। यू कैन फाइल ए सूट डिक्लेरेशन दैट विल इज नॉट वैलिड, वाज नॉट एग्जीक्यूटेड, और जो भी आपके ग्राउंड हो। यानी अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर विल बना के दी है तो यू कैन स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम गिविंग इट अनलेस यू आर एबल टू शो दैट he has executed the will when he was not in a stable mind. Otherwise just आपको वो खुश नहीं है कि उन्होंने वो दूसरे बच्चे को दिया करके दूसरा बच्चा उसको चैलेंज नहीं कर सकता है अनलेस वो अनस्टेबल माइंड में उन्होंने बनाई हो तो यू हैव टू फाइल a suit for purpose। या जब प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन करता है यू हैव टू अपोज दैट। जब क्या होता है प्रोसेस होता है प्रोबेट के लिए जब एप्लीकेशन होता है तो इन दैट केस वो अपोज कोई करता है तो उसके लिए अपोजिशन के लिए कारण देना पड़ता है कि क्यों अपोज कर रहा है, व्हाट इज द बेसिस फॉर हिम अपोजिंग गिविंग ग्रांट ऑफ प्रोबेट। जब वो अलाउ होता है एप्लीकेशन उसके वक्त दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी सूट और फिर वो नॉर्मल सूट के जगह चल जाता है। ओके, उसके लिए कोई अमाउंट कोर्ट में पेड करनी पड़ती है? कोर्ट फीस मैक्सिमम प्रोबेट के लिए 75,000 है महाराष्ट्र में। थैंक यू। ओके। और कुछ? Rakesh, now we'll take that question and which came on the group. Good evening, sir. The last question. Yeah, बोलिए। Jayashree here. I'm calling from Thane, Ghodbunder Road. मेरा ये क्वेश्चन था, एक अगर विल बना हुआ है और रजिस्टर्ड विल है, अनम्यूट करनी नहीं देना। एक मिनट बात मत कीजिए बाकी कोई। हाँ, बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर एक विल बना हुआ है और वो रजिस्टर्ड भी है, ओके, और अगर दूसरा विल बनाया जाता है तो जो पहले विल है वो मतलब रहेगा क्या उसका वैल्यू, क्या उसको लीगल? टेक्निकली वो वैलिडिटी नहीं होगा अगर उसने आपने जो नया जो विल बना रहे हैं तो पहला विल ऑटोमेटिकली चला जाता है प्रोवाइडेड आप प्रॉपरली उसमें डालते हो कि मैंने लास्ट विल है जैसे आपने बताया पहले, विल मैंने बनाया था वो भी मैं वो ग्रुप पे शेयर करूंगा, वो जो बना वो फॉर्मेट भी मैं शेयर करूंगा ग्रुप पे। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। हेलो। हाँ हेलो, राजमोहन हियर। हाँ राजमोहन जी बोलिए। Sir, all our properties movable and immovable are in joint name. So can we make a joint will? Okay. Good question. See, पहली बात है ना कि ये joint will का concept is to certain extent is not included in Indian Succession Act. लेकिन there are series of judgment which is talking on that issue, joint will और mutual will के ऊपर। तो आप ज्वाइंट विल यानी दोनों जन मिला के बना सकते हो, लेकिन एक कोर्ट लुक्स इट एज इवन इफ इट इज ज्वाइंट विल एज टू डिफरेंट विल मेड ऑन अ सेम पेपर। तो वो क्या विल का कंटेंट है तो वो ज्वाइंट विल कंसीडर किया जाएगा या म्यूचुअल विल कंसीडर किया जाएगा। सो दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, आप कैसे ड्राफ्ट करते हो उसके ऊपर सब निर्भर है। तो ज्वाइंट विल भी बना सकते हो बट टू
लेकिन वो टेक्निकली वो एक विल, दो विल एक लेटर पे है ऐसा पकड़ा जाता है। ओके अच्छा, ओके ओके। ओके बोलो और so shall we see the questions which have come on the chat? If they are there, we'll take that question, otherwise we will not take. Is Chetan there? Chetan Gandhi? नहीं है। हितेश है? नहीं है। गिरीश जोशी है क्या? नहीं है। अमित मोहरे है क्या? So we'll take only those questions if those person are available, otherwise we will not. Sir, actually, I have already asked my question, Amit Mohre. Okay. One more thing, when you are saying Mumbai or Bombay, which exact area is to be covered? BMC area or MMRD area? BMC area. It is not MMRD area? No. It's only BMC area. Okay. Thank you, sir. Hello. Okay. Hello. हाँ बोलिए, कौन बोल रहे My हैं? name is Ramesh. I have one question, sir. Suppose I have a joint property, okay, where I have contributed as per income tax 90%, and my wife has contributed only 10%, but the property is in joint name. How much can I will? One of the lawyers told me I can will only 50% because the share is not mentioned in the agreement. Is that correct? Yeah, your lawyer is right. Because when a property is acquired, purchased in jointly, there is a presumption that both of you have equal share. Unless you have mentioned in that document that you have 50% or you have 90% and your wife has 10%. Otherwise, that is the presumption that it is a joint property, both of you have equal share. Okay. Thank you so much, sir. Okay, welcome. Hello, sir. Sharmila here. हाँ बोलिए. How much time does it take for the probate? प्रोबेट के लिए डिपेंड्स कैसा है. अगर अनकॉन्टेस्टेड है, जिसको कोई अपोज नहीं करता है, तो नॉर्मली 6 महीना 1 साल में बॉम्बे हाईकोर्ट में मिलना चाहिए. Okay. ये बॉम्बे हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं. Yeah. I'm from Bombay only. I have already given it, and it's taking time. So अगर just अनकॉन्टेस्टेड हो, आप फॉलो अप करते हो, फटाफट जब जल्दी करके लेते हो तो. Yeah. Okay, sir. Hello, sir. Thank you so much. One question. Probate के लिए और कोई alternative है क्या? Because someone told me probate करना is very difficult. नहीं, कोई बोलता, कोई डिफिकल्ट नहीं है. बॉम्बे में है तो you have no choice. Law says it has to be probated. Okay, thank you, sir. Okay, welcome. Anyone else? Okay. सतीश कामत है क्या? नहीं है. प्रभाकर. गिरीश जोशी का सवाल हो गया ना? गिरीश जोशी है? नहीं है. महेश पालकर है क्या? तो जिनका है उनका सवाल ही मैं पूछूंगा. ग्रुप में पूछा है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई. वेणुगोपाल शेना है क्या? नहीं है. मधुकर नहीं है. प्रज्ञा मेयर, मेरे प्रज्ञा मेयर थे, लेकिन आई थिंक शी हैज. हेलो, प्रज्ञा इज देयर? कुशवा का हो गया सर. प्रज्ञा आप है क्या? हाँ हूँ मैं सर, यहाँ पे. आपका सवाल का जवाब चाहिए या आपको मिल गया है? चाहिए सर, इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे लिए. हाँ हाँ चाहिए, आंसर चाहिए. ओके प्रज्ञा. At what age earliest can one write their will? आप कभी भी कर सकते हैं, एक बार मेजर होने के बाद. आपके 18 एज चाहिए, जितना जल्दी करे उतना अच्छा. और दूसरा कुछ सवाल है आपका, उसमें बोला है if a step parent wishes to write a will which will have an impact on the step child, is there a different procedure or is adoption mandatory in such case? Madam, there is nothing called this adoption or anything. A person can give his, by will, he can give his property to anyone he desires, provided it is his own property, only then it will be effective. Technically, a person can give, I can give a Taj Mahal to XYZ, but it will have no value or no effect. So,
इट शुड बी हिज प्रॉपर्टी विच इज गिविंग टू समवन एल्स, बाकी कुछ उसमें जरूरत नहीं है। अनलेस आपको कुछ तो स्पेसिफिक कुछ इश्यू हो तो बात आप अलग हो सकती है। ओके पुष्पा जी, आपका मेरे ख्याल से सवाल मिल गया जवाब, राइट? हेलो हाँ सर, दिस इज पवन फ्रॉम दिल्ली। ओके पवन बोलिए। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि काफी लोग जो ऐसे होते हैं कि जिनको नॉलेज नहीं होता है, और ऐसे ही मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि बुजुर्गों ने अपने हाथ से बिल लिख दिया, मगर उनको प्रोसीजर पता नहीं था, उन्होंने उस पे विटनेस नहीं कराया या ऐसा कुछ हो गया, मगर पूरा का पूरा बिल वो अपने हाथ से लिख के छोड़ देते हैं, उसका कोई वैल्यू होता है? नो, एब्सोल्युटली नो वैल्यू। ओके जब तक 2 विटनेस नहीं होते इट इज नॉट ए विल। ओके सर, थैंक यू। पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो कुछ फर्क पड़ता है विल बनाने के बाद? ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आप कौन सा दे सकते हो? जो आपका हक है वही दे सकते हो दूसरे को। ओके दूसरा नहीं दे सकते हो। सर इसमें कोई एविडेंस लगाने की जरूरत है, जैसे कॉपी ऑफ इंडेक्स टू या एग्रीमेंट की कॉपी विल के साथ? क्या है यहाँ पे पूछते हैं और रजिस्ट्रेशन के समय, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स रॉन्ग। दे कैन, कोई सवाल ही नहीं होता है उसमें, तुमको ओनरशिप नहीं प्रूव कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पूछते हैं कि इंडेक्स टू लगाओ, वो ये लगाओ वो लगाओ, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी मेंशन की है, बट कोई सवाल ही नहीं है उस चीज का टेक्निकली अगर चाहे तो। अच्छा सर, एक यही सवाल अभी दिमाग में आ गया। हाँ बोलिए। कमल पाटिल बोल रहा हूँ, फिर दोबारा पुणे से। हाँ बोलिए। अच्छा सर, अगर किसी ने एक फर्जी विल बना दिया, जैसे एक आदमी की डेथ हो जाती है और मैंने, फॉर एग्जांपल मेरी ही, मैंने कोई विल नहीं बनाया, लेकिन मेरे एब्सेंस में कोई ऐसा जो कि मेरे क्लोज है लेकिन मैंने विल नहीं बनाया था, तो उसको ये जानकारी है, तो वो क्या फर्जी विल बना के खुद के नाम पे और 2 विटनेसेस उनके नाम पे कुछ शेयर देना चाहता है, या कोई और विटनेस से देता है उनको इनडायरेक्टली शेयर दे देता है, वो कागजों में नहीं रहता, लेकिन ऐसे 2 विटनेसेस और खुद उसका एग्जीक्यूटर या जो भी कहते हैं ना उसको लेने वाला बना देता है, तो क्या इट विल स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ और कहीं लीगली उसकी वैल्यू होगी? क्योंकि मैंने कोई विल बनाया नहीं था, ही न्यू दैट। कैसे हो सकता है? समझ गया मैं। ऑल इट्स ए मैटर ऑफ प्रूफ। एंड ऑफ द डे वो प्रूव करता है कोई ये फर्जी है या ये विली नहीं है, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रूफ। वो कैसा प्रूव करता है, क्या फैक्ट्स के ऊपर प्रूव करता है, वो सब फैक्ट टू ये विल है। फ्रॉड है तो फ्रॉड है, उन्होंने उनका सिग्नेचर नहीं था, वो विटनेस नहीं था, बहुत सी चीज आ जाती है उसमें। हाँ, लेकिन वो डुप्लीकेट सिग्नेचर मार सकता है मेरी, मान लिया कि ठीक है, वैसे डुप्लीकेट सिग्नेचर से उसके लिए वापस बोला ना, वो सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाता है कि आपको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आ जाएगा उसमें, हैंडराइटिंग एनालिसिस करेगा, आपका जो एडमिटेड विल है उसके साथ कंपेयर, एडमिटेड सिग्नेचर है उसके साथ कंपेयर करेगा, ऐसे बहुत से चीज आ जाती है। अच्छा नहीं, आपको बिकॉज यू आर इनटू दैट प्रोफेशन में आपके सामने ऐसे आती है क्या कुछ केसेस ऐसे? आते, आज ही एक आया है ऐसा है, आप जो बोल रहे हैं ना वैसे आज मेरे पास आया है। तो अच्छा सो आते हैं, तो आई हैव टू एग्जामिन वेदर वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। सभी पार्टिसिपेंट्स को यही कन्वे करना चाहता है कि विल बना के छोड़ देना चाहिए। यस, यू हैव टू, मे बी यू शुड गिव इट चाहे कोई पब्लिसिटी इस आपके तरह का, सब फैमिली में, चाहे जिसको हम दे दे, चाहे अपने ही बच्चों को दे दे, लेकिन विल बना के छोड़ दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यस ऐसे ही लर्ज में छोड़ना या ऐसे ही छोड़ के कोई इनको ऐसा कर देगा, फिर ना हम जिसको चाहते तो उनको नहीं दे पाएंगे, ना जो हकदार है उनको ना जा पाएंगे। नहीं, थैंक यू सर, बाकी मैंने टेस्टिमोनियल्स में किया है। यस प्लीज व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए टेस्टिमोनियल, इट विल बी ग्रेट। मैंने डाल दिया, लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि बाकी है। आई एम ऑन लिस्ट। यस सर, ओके, थैंक यू पाटिल जी। कोई और कोई सवाल? हाँ, प्राजक्ता है क्या? दूध मंडे, हाउ मेनी एक्चुअल डेज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर ऑफ विल? महेश पालकर है क्या? नहीं है, ठीक है। आई थिंक वट एवर क्वेश्चन, कोई चैट में है क्या राकेश? I think we have covered all the questions, sir. या अगर कुछ सवाल रहता है तो मेरे को आप ये मैसेज दीजिए, कोई बात नहीं दी, बट जो अटेंड हुआ था ना मेरे को उसमें चाहिए, जो अटेंड है उनके लिए मैं जवाब दूंगा, जो अटेंड नहीं किया उनके लिए मैं नहीं जवाब दूंगा, बिकॉज यू इट शोज दैट यू आर रियली
interested in a topic, not just for purpose of asking question, they're asking question. Okay. Thank you. I have to appreciate. Thank you, everyone. I have to thank my team, which is Rakesh, Pallavi, Sweetie, and Pratibha, who had helped me to organize myself in this, and also Shankar Bhagatji, who helped me a lot in conducting everything or organizing myself. So I'm really thankful for all of you also for attending this session and encouraging me in conducting this session on the will. And I would like to conduct more such sessions, subject to Shankarji giving me permission to do such session. So I'm thankful and thank you all. Good night. Shankarji, it's to you. Thank you, sir, for such a wonderful program. Thank you. Thank you. Thank you from all of us, sir. Thank you. Thank you. Thanks, Girish, and Yes. all your team members. You have done a very nice webinar, and you have given a very useful and very informative details regarding will, and it is explained very well. I also thank all the participants who have taken so much of active participation in the discussion also. It will increase speakers' knowledge also, and also or participants' knowledge. In fact, we should thank as participants, sir, Yes, for sir. organizing it, and making the advocates are available for us. And it's Yeah, very Shankar took the initiative for that. And very essential. we will conduct similar webinars in different topics and different subjects with subject experts and in coming days. I also That would be request really nice, sir. I also request all of you, if any one of you are willing to present a webinar, on webinar, you can contact me so that we can organize in coming days, or you can suggest any speakers. So it will help all the Is community. it Shankar sir talking? Yes, Sir, I would like to invite you for another webinar. You know, for I'm running one group, Maharashtra Cooperative Housing Society Education and Training Group. There are 6 WhatsApp group, and we used to conduct program. So I'll be inviting you through WhatsApp. Okay, sure. And we are Girish also. Girish ji, namaskar. Santosh Bade here. बोलिए Santosh ji. It was a wonderful program and very eye-opening thing. Thank you. Fortunately, I was exposed to the will because of my in-laws. And whatever the points you said, fortunately they had taken care, so we never had any trouble. Okay. But it was really wonderful program. So I like to share this link to my friends. Yeah. So that at least they get the basic knowledge, and then whatever is required, then they will contact you. Sure. Thank you, Santosh ji. Vakil Sahab, thank Shankar you. sir. Okay. Can I suggest one thing? 2-3 subjects. Because I am dealing lots of 4G men, being colonel and coming from Northeast, just recently posted here in Pune. Sir, सबसे important. Shankar sir, are you there? Yes, sir. Yes. अच्छा, Shankar sir, एक RERA, ठीक है? Yes, sir. Second is consumer right. Okay. These are very, very burning issues, and many guys are unaware. And talking about, especially for forces, we got serviceman compulsory health scheme, वगैरह. Okay. That is a specific. I will not recommend that. But this consumer right and RERA, everybody is going for flat, and everybody is losing something. Like we are having one case, I can't name it on the group now or on a common platform. We are fighting with the builder in Pune, a big builder. We have pulled him to RERA because the open space he was supposed to leave, he's grabbed it and he's constructing some commercial. Then he says amenity create. You can check my YouTube channel. I have put lot on the RERA also. I will share the link of that also. Yeah, certainly, sir. But because this impromptu questions, what your lecture is certainly very important and I am an expert domain on the RERA also. RERA. And also, it's my regular topic. Acha, sir. So RERA, you like can will, organize, you can. Yeah, RERA and this Consumer Act, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. And then certainly बाद में the human rights and domestic problems. No, we want to focus something now, which is practically and when person is getting affected. Absolutely. Will देखते ही मैंने बोला कि यार, this is what we require. Everyone is required. And there was good participation, I suppose. काफी सारे थे लोग. बहुत लंबी लिस्ट थी. Though everybody couldn't question or chat.
And participants also from so many cities, different cities. Different part of the India. Different, In fact, absolutely. And I काफी, got some message from Netherlands also. oh, wonderful. I would have, there was little less time. Otherwise, I would have shared with my daughter who is in States. Okay, वहां से भी शेयर करती है, उसको पता चल जाता तो उसके 10-5 फ्रेंड को और वो शेयर कर दी थी. Right. We will share the recording of this in the WhatsApp We'll group. see how we can share the will recording share that. also. We'll do it. Sir. Okay. Okay. So first time I joined probably one time I joined some Zoom meet. बड़ी मुश्किल से ज्वाइन किया. Lot many guys help me कि how to get out to that. मैंने बाद में जाके देखा वो लगा था whatever that a fire block or whatever it is called. Stop लगा था वो, उसको जाके वहां पर किया मैंने. फिर वहां वो डाटा मोबाइल ऑफ था, कुछ था उसमें Zoom में जाके सेटिंग में. Okay. Thank you. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था. एंड थैंक यू सर. बाकियों को मौका दे देता हूँ. आई शुडंट टेक मच टाइम. थैंक यू. इट वाज रियली नाइस सर. Okay, thank you. Sure. गिरीश जी, गुड इवनिंग. राजन here. Okay. हाँ राजन बोलिए. बहुत अच्छा है. आप योर प्रेजेंटेशन वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. Thank you. वेरी नाइस. थैंक यू. Thank you राजन. Thank you. Bye bye. चलो bye bye. Okay. Thank you all of you. Bye. We'll close our meeting. Yes. Thanks all of you for joining. Okay. Bye. Bye. See you. Bye. Thank you, sir. Good night. Thank you. Thank you, sir. so Good night. Good much, night, sir. sir. Thank you. Good night. Good night. Good night, ma'am. Thank you. Thank you. Bye.